Hello, Vachu. Very good afternoon to all of you. How are you all? I can see SG, SW, GS, MB. कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? Let me know. Good afternoon, SW. What's your good name? किसके? Can you see, sir? Yes, I can see. Hi, KV. Hi, Kiran. Hi, Swatantra. Okay. How many of you attend the last classes of sequence and series? Please let me know. Okay, Kiran, you have attended. सो आपने समझ में आया आपको? आई वॉज नॉट देयर. ओके. पी डी, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? सिद्धि. ओके सिद्धि. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ए जी पी एंड डिफरेंट स्पेशल सीरीज. ओके. सो डीपीपीएस किस किसने सॉल्व किया है लास्ट क्लास वाला? जल्दी से लिखिए यस नो. हाउ मेनी ऑफ यू? सूरज हेयर. हाय सूरज. वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. हाय आयुष्मान. यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट. गुड टू सी यू अगेन. नमस्ते गुरुजी. एस डब्ल्यू. नमस्ते बेटा. हाय सी एस. हैव यू रिमेंबर मी? यू आर स्वतंत्र. जस्ट नाउ यू रोट योर नेम एस डब्ल्यू, or your name is something else, because that maybe there are two SW. Tell me your name, SW. I'm in tomorrow class. Okay, yes, Swatantra. Chalo, let's start discussing the DPP. Okay. Hello, RA. Okay, sequence and series 3. Today we'll discuss sequence and series 3, third part. Myself, Amit Agarwal, all of you know, I've done my BTech from NIT Allahabad. I have a 19-year experience from FITGI, Allen Career Institute, and Career Point Kota. Basically, I belongs to Kota. For you, join class on time, watch the complete lecture, attend all the classes, and if case you have missed the class, then you can see the recording while going into past live sessions. Revise previous class topics or solve DPP before coming to class. Be polite with your fellow students and teachers on chat. Never spam in the class or use uncivilized language. Use my doubt section to ask your doubt related to this class without disturbing others and the teacher. What are the system requirements? You can use either Chrome or Firefox. Currently, we are not supporting Safari or Edge. Android, please use Android version 6 and above. सब टीचर्स कोटा से ही क्यों हैं? ओके. बेटा मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, या कोटा इज फेमस फॉर कोचिंग, दैट्स वाई ऑल द टीचर्स आर हियर फ्रॉम कोटा. द क्लास विल रन स्मूथली ऑन 5 MBPS एंड अबव. चलिए अब हम पहले DPPS डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. एनीवन वांट टू आस्क? देन यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 1. 2. Anybody? Just write down the question number which you have solved, or you can see the solution from our website as well. If you want, you can ask question number 1, 2,
3, anybody? जिसने सॉल्व किया AK, you are saying that you have solved the DPP. चलिए मैं खुद ही कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एक दो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप इन्हें देख लीजिए. देखिए, ओके, सी एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 3 raised to power 1 by 4 into 9 raised to power 1 by 8 into 27 raised to power 1 by 16 into 81 raised to power 1 by 32. ओके, सारे बच्चे ध्यान देंगे. इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 by 4 इंटू वी कैन राइट 3 raised to power 2 by 8, 3 raised to power 3 by 16, 3 raised to power 4 by 32. अब देखिए, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो दैट पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस 4 by 32 एंड सो ऑन. तो यहाँ क्या बन गया? पावर में बन गई एक AGP. सो यू कैन सॉल्व दैट of how many terms? Infinite terms. I hope it is clear to you all. Just write yes sir if it is clear. If you want to ask again, just ask me. Yes, I'm waiting for your answer. आयुष्मान, you there? स्वतंत्र, ओके, समझ में आ गया. वेरी गुड. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम. 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देखिए, वेरी गुड. 1 upon r अंडर रूट r plus 1 plus r plus 1 root r. This is given. This is a general term of a series. Now what I'll do is I'll rationalize this term. So what I'll get, r plus 1 root r minus r root r plus 1. इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में आएगा r plus 1 whole square into r minus r square r plus 1. Okay, so r plus 1 root r minus r root r plus 1 अपॉन, यहां से हम कॉमन लेते हैं r plus 1. ओके, तो आप देखिए क्या बचता है आपके पास अंदर, r plus 1 minus r. So basically what we are getting is r plus 1 root r minus r root r plus 1 upon r into r plus 1. Okay, so we'll get 1 by root r minus 1 by root r plus 1. Okay, I hope this is clear to you. r plus 1 root r रैशनलाइज किया बच्चों. अब हम जनरल टर्म सम कर देते हैं. SN हमें कहां से कहां तक सम चाहिए? अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमें चाहिए 1 से 99. सो हम लिखते हैं S99. क्या मिलेगा बच्चों? 1 minus 1 by root 2 plus 1 by root 2 minus 1 by root 3 and so on. So we'll get 1 by root 99 minus 1 by root 100. So finally we are getting 1 minus 1 by root 100. So answer will be 9 by 10. So third option is correct. As well as we can see fourth and first options are also correct. So this is a multiple choice question. Okay. Chalo, leave this DPP and now we'll start our class. All of you are ready? Say yes or no for today's class. जल्दी बताइए. आज हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं रिगार्डिंग मीन. ओके, सो जोश में बोलो यस सर. Okay, so today we'll discuss arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and
रिलेशन अमंग दैम. फाइन, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है. देखिए, अर्थमेटिक मीन, हम इस वर्ड को देखें, मीन मीन्स ऐसा चीज जो दो लोगों के बीच में डाली गई है. तो दो नंबर्स हैं ए एंड बी. ओके, उनके बीच में कुछ डाला गया है तो इसलिए उसे बोला गया मीन. ओके, मीन. नाउ अर्थमेटिक मीन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नाउ दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी. सो वी से 2a is equals to a plus b. So a is equals to, we can say a plus b by 2. So am of two numbers is given by a plus b by 2. Okay. Similarly, let's say there are n numbers a b and n arithmetic means are inserted between them. अब कितने नंबर्स इंसर्ट कराए हमने बीच में बच्चों? n. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 1 2, दो पहले से थे, बीच में n डाले तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? n plus 2. तो ये एक एपी बनी. मीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच में डालें. अर्थमेटिक मीन बिकॉज नाउ दे आर इन एपी. सो बी इज इक्वल्स टू, वी कैन से ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. अब आप A1 निकाल सकते हैं. A2, आपसे जो भी अर्थमेटिक मीन पूछा जा रहा है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. A1 इज A प्लस डी, A2 इज A प्लस 2D, AN इज A प्लस एन डी. नाउ सम ऑफ दीज एन अर्थमेटिक मीन. देखिए, हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं. सारे AM का सम किया, A1 प्लस A2 प्लस AN. ओके, सो आई कैन से दैट इज n बाय 2 इंटू A1 प्लस AN, n बाय 2 इंटू A1 प्लस AN. बेटा अभी लाइव स्ट्रीमिंग दिख रहा है आपको? आ रहे? बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, दैट वाज अ टेक्निकल इश्यू, इग्नोर कीजिए. n बाय 2 इंटू A1 प्लस AN. A1 की वैल्यू लिखी है हमने A प्लस डी, AN की वैल्यू लिखी A प्लस एन डी. सम अप करते हैं 2a प्लस एन प्लस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू रख दीजिए. डी जो हमने लिखा था, डी की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास? b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. एन प्लस 1 एन प्लस 1 कैंसिल कीजिए तो देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. वी कैन से सम ऑफ द एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स. अब ये क्या है? सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन देम. ओके, तो यानी ये जो हमने बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, अगर हम इनका सम करते हैं तो दैट इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब आप एक क्वेश्चन कीजिए. 7 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 5, देन फाइंड द थर्ड अर्थमेटिक मीन. ओके, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे. Yes, Ari, I can show you the previous slide. The arithmetic mean. Now, sum of these and arithmetic means is this. आप इसको देख सकते हैं एक बार. बाकी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन क्या है? 7 arithmetic means are inserted between 3 and 5. Then find the third arithmetic mean. Okay, 4.5, 3.5 आंसर्स आ रहे हैं. $3.75. ओके, लेट्स चेक. देखिए कैसे करते हैं. 3. Now we have inserted 7 arithmetic means A1, A2, A3 and so on A7, 5. Now we can see that 5 is the ninth term. So I can say 5 is 3 plus 8D. So D is equals to 2 by 8, better say 1 by 4. Now they are asking you the third AM. Third AM is the fourth term of this AP. Fourth term of this AP. So we will say 3 plus 3D. So answer is 3 plus 3 by 4. Yes, answer is 3.75. SG, I added 0.5 3 times. Okay. SA 36. No, beta, answer is 3.75. I hope that is clear. जिसने कर लिया
उन्हें समझ में आ जाना चाहिए, और जिसने नहीं किया अभी समझ में आ जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। आई कैन सी 3.75। मिस्टेक कर दी थी बेटा, गलती नहीं करनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। इस बार कितने अर्थमेटिक मीन है बच्चों? एन। if the ratio of first and nth arithmetic mean is 1:3, then find the value of n। यानी फर्स्ट और nth अर्थमेटिक मीन का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। जल्दी से कीजिए। Eleven. Okay, let's see. Other students try. PD SA is also answered 11. KV 11. Kiran. Okay. Very nice. Swatantra, you have also answered 11. अरे वाह, देखिए 20, A1, A2 and so on, AN, 80. Now can we say 80 is equals to 20 plus n plus 2 minus 1 into d? बेसिकली हमने d निकाला बच्चों। d कितना आया? 60 by n plus 1। d आया 60 by n plus 1। अब now what has been given? A1 is to AN. What is A1? Is AN 3. So 3A1 is equals to AN. अब A1 क्या होगा बच्चों? A plus D. A की वैल्यू है 20. So 3 into 20 plus D is equals to AN. That is 20 plus ND. Okay. Now, so we have got 60 plus 3D is equals to 20 plus ND. Now, 40 is equals to n minus 3 into d. And what was the value of d? d was n 60 by n plus 1. So, twice n plus 1 is equals to thrice of n minus 3. So, we have got 2n plus 2 is equals to 3n minus 9. Hence, yes, अब सब बच्चों का आंसर सही है। n is equals to 11. Very good. सबने आंसर 11 किया था। Very nice. किस किस और बच्चे का आंसर 11 आया? प्लीज लेट मी नो। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। दो नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है 13/6। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन दैम। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हमने? इवन। Such that some of these AMs increase their number by 1. Then find the arithmetic means inserted. कितने arithmetic mean हमने insert किए हैं? Please tell me. Okay? चलिए start कीजिए जल्दी से। Yes, बच्चों, sum of the two numbers is 13/6 and even number of arithmetic means are inserted between them.
such that sum of these AMs increase their number by 1, then find the number of arithmetic means inserted. सबसे पहले ये बताइए हम कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराएं, हमें क्या लेना चाहिए वो फिगर. जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो नंबर हमें क्या लेना चाहिए. 2n. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आंसर इज 9. नहीं भाई, 9 कैसे हो सकता है बेटा, इवन है. n+1. देखिए जब भी कोई आपको कहता है इवन तो आपको लेना चाहिए 2n. ओके, सो लेट्स से दोज नंबर्स आर a. सो बीच में हमने a1 a2 एंड सो ऑन a2n कॉमा b, ये नंबर्स इंसर्ट करा है. अब हमें कहा जा रहा है सम ऑफ दीज एंड अर्थमेटिक मीन्स इज 2n+1. दे इंक्रीज देयर नंबर बाय 1. और अभी हमने देखा था सम क्या आता है, n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन देम. अब यहां पे n क्या है, 2n है, तो 2n इंटू a प्लस b बाय 2. सो 2n इंटू 13/6 इज इक्वल्स टू 2n+1. इज दैट ओके? ट्विच आ गया बेटा, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, कुछ टेक्निकल इश्यू है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. Okay, so 13/6 into 2, that should be there. So we have got 13n is equals to 12n plus 6. So n is equals to कितना आया बच्चों, 6. देखिए अब क्या होता है, जैसा मैं एक बच्चे का आंसर देख रहा हूं, किरण आपने 6 लिखा है, जी के आपने भी 6 लिखा है. आंसर क्या होगा, 2n. 2n की वैल्यू कितनी होगी, 12. So 2n is 12. हमें नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बताना है, देन आंसर इज 12. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ये गलती नहीं करनी है कि हमने n की वैल्यू निकाली और 2n नहीं निकाला. ध्यान से देखना है हमने क्या माना था, हमने माना है 2n अर्थमेटिक मीन्स, सो 2n शुड बी द आंसर. इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन. लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स एंड ध्यान देना gm के लिए नंबर्स कैसे होने चाहिए बच्चों, पॉजिटिव. gm के लिए नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड g बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स a g b आर इन gp. So can I say g square is equals to ab, hence g is equals to root ab. प्लस माइनस. अब रूट कब डिफाइन होगा, रूट विल बी डिफाइंड व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव. ओके, क्लियर? नाउ अब हम नेगेटिव नंबर यहां नहीं ले सकते बिकॉज a और b के बीच में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा. ओके, a और b के बीच में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा. सो g इज रूट ऑफ ab. क्लियर? सो ध्यान रखना, gm कब डिफाइन होता है, व्हेन बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव. लेट नाउ अगर हम इसी तरह जैसे अभी हमने n एम्स इंसर्ट कराए थे, इफ a एंड b आर नेगेटिव देन नो बेटा, gm इज ओनली डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. gm इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, नाउ लेट देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b. बीच में हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करा है, a g1 g2 g3 gn comma b are in gp. Then b is what? n+2th term of gp. So b is equal to a r to the power n+2 minus 1. So r is equals to, we can say b by a whole power 1 by n+1. जैसे हमने वहां पर कॉमन डिफरेंस निकाला था, यहां पे हम सिंपल कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं. देन g1 इज ar, g2 इज ar स्क्वायर, gn इज ar टू द पावर n. ओके, देखिए AP में क्या होता है, AP मीन्स सम, GP मीन्स प्रोडक्ट. तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं, g1 g2 g3 gn, सारे gm का प्रोडक्ट किया तो ar स्क्वायर ar टू द पावर n. सो वी हैव गॉट a रेज टू पावर n इनटू r रेज टू पावर, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 2 + 3 अप टू n. ये क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. क्या होता है, n+1/2. r की वैल्यू रख दीजिए, देखिए n+1 n+1 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट रूट ab रेज टू पावर n.
तो यहां पे आया प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन देम। ओके, जैसे am में क्या आया था, n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन, यहां पे आ रहा है nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। 4 GMs are inserted between 5 and 160. Then find the third geometric mean. Okay, 4 geometric means are inserted between 5 and 160. Then find the third geometric mean. जल्दी से आंसर कीजिए। Answer is 80. Okay, let's see. देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, 5 एंड 160 या 160 एंड 5 दोनों में अंतर है। तो जब आपको 5 बोला गया है तो 5 पहले लिखना है, G1, G2, G3, G4, comma 160. So 160 is its 60th term. So we can write 160 into 5 r raised to power 1 by 5. R raised to power 5. So r raised to power 5 is 32. So we have got r as 2. अब आपसे पूछा जा रहा है थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3, क्या हो जाएगा बच्चों, 5r क्यूब, यानी 5 into 2 क्यूब। सो आंसर इज 40। PD आपने लिखा 80, GK आपने सारी सीरीज ही लिख दिया बेटा, वेरी नाइस। 40 किसने किया था, 80 PD आपने किया, देन अगेन यू चेंज योर आंसर 40। ओके, सो राइट आंसर इज 40। आयुष्मान, व्हाट्स योर आंसर? सिद्धि, स्वतंत्र, व्हाट आर योर आंसर्स? किरण, किरण आपने नहीं सॉल्व किया, गॉट इट सर, देन ओके। Next question, if 3 geometric means are inserted between 2 and 32, then find the third geometric mean. चलिए जल्दी से सबको ये क्वेश्चन कीजिए। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अभी ट्राई कर रहा हूं बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 G1, G2, G3, 32, सिंपल GP है, कितने टर्म्स हैं देखो और जल्दी से कीजिए। अभी सबका आंसर आना चाहिए। आई एम बिजी आल्सो, बेटा आपको पढ़ना है, इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे एएम जीएम इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लीज बी फोकस, क्लास में रहिए और ध्यान दीजिए। ओके, आंसर इज सी सी सी। बहुत सारे बच्चों ने सी लिखा है, वेरी गुड। देखिए 2 G1, G2, G3, comma 32, R in GP. So we can say 32 is equals to 2 r raised to power 4. So r raised to power 4 is 16. Hence we can say r is 2. Now G3 will be, G3 is the fourth term. Fourth term will be AR cube. So 2 into 2 cube. Answer is 16. Option C. Hello sir, I'm so late. Sorry. Okay. I'm so late, sorry, no issues बेटा, कोई बात नहीं। अभी पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, इसको आप पास लाइव सेशन में जाके रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है डी के। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
इफ 1 AM, अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, AM और GM को क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है. इफ 1 AM एंड 2 GMs P and Q आर इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स, तो हमने माना दो गिवन नंबर हैं हमारे पास A एंड B, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराया है और दो ज्योमेट्रिक मीन्स A P Q B आर इन GP. आंसर इज B, 2A. ओके, वेरी गुड, सो फास्ट. कैसे किया आपने? वेरी गुड. देखिए, व्हाट विल बी A? A इज A प्लस B बाय 2 and A P Q B R in GP. Then can I say B is equals to A R cube or R is equals to B by A raised to power 1 by 3. So P is equals to A R. I can say A into B by A whole power 1 by 3. So A raised to power 2 by 3 into B raised to power 1 by 3. Similarly, I can say that Q is equals to AR square. So A into B by A whole power 2 by 3. So A raised to power 1 by 3 into B raised to power 2 by 3. अब आपके पास P, Q और A तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, आप लिख सकते हैं. देखिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर बाय Q प्लस Q square by P. Can I say P cube plus Q cube upon P cube? Now, P की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? P की वैल्यू आए A raised to power 2 by 3 into B raised to power 1 by 3. So, can I say A square B plus AB square upon, will get here AB. So, finally we are getting, if I take AB common, A plus B. Can I say 2A? So, answer is 2A. And what was the option? Option number B. सबने ऐसे ही किया था या किसी ने किसी दूसरे तरीके से किया है? जल्दी बताइए. Then I'll tell you the short trick to solve this question. जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, किस किस ने ऐसे किया था? प्लीज लेट मी नो. देन आई टेल यू द शॉर्ट ट्रिक. अनदर मैथड, ओके, दूसरे तरीके से. आई हैड अदर, अरे बाप रे, आई हैड अदर मैथड. देखिए, आप क्या कीजिए, दो नंबर्स आपको यहां पे फोकस करते हैं हम. A P Q B, दीज नंबर्स आर इन GP. देखिए, जब ये एग्जाम में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, A P Q B R इन GP. तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से चार नंबर्स मान लेते हैं GP में, 1 2 4 8. आप कोई भी एक GP कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. तो मेरे पास A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 8, यानी कैपिटल A की वैल्यू आ गई 9 by 2. ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है P स्क्वायर बाय Q प्लस Q स्क्वायर बाय P. सो 4 by 4 इज 1 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 इज 8. आंसर इज 9. तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ 9 by 2. सो वी कैन से 2A. सो जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जब आपको ऑप्शन से करना है, तो यू कैन डू बाय दिस अप्रोच. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव गॉट इट. चार नंबर्स आप GP में मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दीजिए. क्लियर टू यू? जल्दी से लिखिए. यस सर. ओके किरण, ओके आयुष्मान. Just class started at 3 o'clock PS. Don't worry. Now we start harmonic mean. Harmonic mean. देखिए, हमने HP में भी पढ़ा था. HP को हम, HP is reversal, whose reciprocals are in AP. Okay. So
HM of two numbers A and B is given by 2AB upon A plus B. SG repeat please. Okay, I'll repeat it for you. चलिए यहां देखते हैं. A, P, Q, B are in GP. So can I say 1, 2, 4, 8? मैंने अपनी मर्जी से ये 4 नंबर्स मान लिए हैं. तो P को मैंने मान लिया है 2, Q आ गया 4. हमसे पूछा गया P square by Q plus Q square by P. So that is 1 plus 16 by 2. So 9. Now what is their AM? 1 and 8. So A is equals to, we can say 9 by 2. So 9 को हम लिख सकते हैं 2A. So SG, that is clear. You asked me to repeat. So harmonic mean of two numbers. देखिए AHB are in HP. आप भूल जाओ इसको, आप तो ऐसे याद कीजिए 1 by A, 1 by H, 1 by B are in AP. So बेटा 2 by H is equal to क्या आएगा? 1 by A plus 1 by B. So H is equals to, we can say 2AB upon A plus B. So this is the harmonic mean of two numbers. Okay, Raviansh there. Raviansh here. Okay, RS, Raviansh. Very good. Can I call you Ravi? Okay. So, similarly, जब भी आपको NHM इंसर्ट कराने हो तो आप HM लिखिए लेकिन उसका रेसिप्रोकल लेके कन्वर्ट कर दीजिए AP में. Then do like AM. Okay. Similarly, we can prove that sum of these reciprocals of these HMs is equal to n times the reciprocal of single harmonic mean. Okay, Satyendra. चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए आप. 9 arithmetic means and harmonic means are inserted between 2 and 3. If the harmonic mean H is corresponding to arithmetic mean A. यानी अगर आप सेकेंड arithmetic mean ले रहे हैं तो harmonic mean भी आपको सेकेंड ही लेना पड़ेगा. Then find A plus 6 by H. Okay, try कीजिए जल्दी से. A plus 6 by H. आयुष्मान, स्वतंत्र, किरण, रवि, सत्येंद्र, जल्दी से ट्राई करो. बेटा ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है. वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. डोंट वरी, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं. मेरी आवाज आ रही है आपको? 9 AM and HM are inserted between 2 and 3. स्वतंत्र आपके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. इफ द हार्मोनिक मीन H is corresponding to arithmetic mean A, then find the value of A plus 6 by H. Okay, दीपांशु. So 2 and 3 के बीच में हमने इंसर्ट कराए हैं 2A1, A2, A3, AN, A9, comma 3. So 3 is the 11th term. So we can say 3 is equals to A. And what is A? A is 2. स्वतंत्र, आपने क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको बेटा? 9 AM and HM are inserted between 2 and 3. And if the harmonic mean H is corresponding to arithmetic mean A, then find A plus 6 by H. So 2 plus 10D. So D is equals to 1 by 10. अब सोच लीजिए आपने A1 निकाला तो A1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 plus 1 by 10. That is we can say 21 by 10. तो A की वैल्यू आ गई. Now similarly अब हम हार्मोनिक मीन के बारे में बात करें तो we will say 1 by 2, 1 by H1, 1 by H2, and so on, 1 by H9, comma 1 by 3 are in HP. So 1 by 3 is equals to 1 by 2 plus we can say 9D. Hence D is equals to we can say minus 1 by 54. Okay, अब आप 1 by H1 निकालिए बच्चों. 1 by H1 क्या हो जाएगा? Half minus 1 by 54. So we'll get 54, 27, 27 minus 1. 27 minus 1 is 26 by 54. So we'll get 13, 13 by 27.
Okay, now they're asking you a plus 6 by h. Okay, and what was a here? A was 21 by 10. Okay, just wait, this will be 10d. Wait. Okay, let's do it over again. Okay, let's do it again. One by 3 is equals to 1 by 2 plus tan d. Hence d is equal to, we'll get minus 1 by 60. So 1 by h1 will be 1 by 2 minus 1 by 60. So we'll get 29 by 60. So what's the value of 6 by h1? 6 by h1 will be 29 by 10. So they're asking you a1 plus 6 by h1. So 21 by 10 plus 29 by 10. So answer should be 5. So answer is option C. Okay. Is it clear? JD, that by chance I have taken the value of total number of terms, I have mistaken 10. So I have written 9. So now I am writing it correctly. So you can see it from here. Is this useful for February attempt? Yes, but beta, this class is for micro course for the student of class 11. But although it is very useful for class for February attempt also. Okay, moving on. Now the very important topic of this class, रिलेशन अमंग AM, GM एंड HM. देखिए, अब AM को हम एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं. नाउ AM, GM, HM आर एवरेजेस. AM is simple average. Simple average means sum of the numbers upon n. But focus on this, positive numbers. Positive numbers. Okay, GM of n positive numbers will be product of the numbers whole power 1 by n. AM is sum of the numbers upon n. GM is product of the numbers whole power 1 by n. And HM is n upon sum of their reciprocals. Okay, then there is a relation. A is always greater than equals to G and G is always greater than equals to H. Okay. सो इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर सेम. भाई ये इक्वल हो सकते हैं, कब होंगे? व्हेन नंबर्स आर सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की क्लास में हम ऐसे दो क्वेश्चन करेंगे, एक जेई एडवांस में आया हुआ है, एक जेई मेन में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन एम इज इक्वल टू जीएम देन नंबर्स आर सेम. See, let's say we have taken two positive numbers a and b. Then what is a? A is a plus b by 2. What is g? G is root ab. And h is 2ab upon a plus b. Now let's prove this. Okay. So अगर मैं आपको बोलूं आप a minus g निकालिए. A minus g is a plus b by 2 minus root ab. So we'll get a plus b minus 2 root ab upon 2. So we can say it is half of root a minus root b whole square. That is always greater than equals to 0. So we can prove that a is always greater than equals to g. Okay, there is some technical issue we are facing today, so please ignore and try to focus here. Similarly, g minus h. If we calculate, you will get root ab minus 2ab upon a plus b. So taking root ab and a plus b common, I'll again get here root a minus root b whole square. That is always greater than equals to 0. So we can say g is always greater than equals to h. So a is equals to g is equals to a is greater than equal to g and g is greater than equal to h. ध्यान रखिएगा, am is always greater than equals to gm and gm is always greater than equals to hm. इक्वलिटी साइन होल्ड करेंगे कब? व्हेन नंबर्स आर सेम. और देखिए, फॉर एनी टू नंबर्स जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच. देखिए यहां पर अगर हम जी स्क्वायर निकालते हैं तो दैट इज ए बी, और ए एच निकालते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए बी. ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल. सो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट.
Okay. So A, G, and 4 are AM, GM, and HM of two positive numbers. सर व्हेन वी विल डू एडवांस क्वेश्चन, बेटा थोड़ी देर में, बस अब थ्योरी खत्म हो गई, अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं. इसमें कुछ मेन लेवल के भी क्वेश्चन है, कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है. ए, जी एंड 4 आर ए एम, जी एम एंड एच एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एंड 2a plus g square is 27, then numbers are. ओके, चलिए जल्दी से कीजिए. आंसर इज सी. ए के, यू हैव सेड आंसर इज सी. गुड. बाकी बच्चे, आंसर इज बी. ओके. वेयर इज आयुष्मान, सिद्धि? बेटा आप लोग कहाँ गए? आपने दो बच्चों ने बी आंसर किया है, दो ने सी. आपने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के आंसर किए, उसके बाद आप आंसर नहीं कर रहे हो. जल्दी से आंसर बताइए. ओके पलाश, योर आंसर, यू सेड आंसर इज बी. एम आई राइट पलाश? लेट्स सी. चलिए देखिए. 2a plus g square. पलाश, बट आई थिंक योर आंसर इज रॉन्ग. बेटा एक बार चेक करो. देखो, 2a प्लस जी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए एच इज इक्वल्स टू 27. नाउ एच इज गिवन एज 4, सो 2a प्लस 4a is 27. So a is equals to, we will get 27 by 6, so 9 by 2. ओके आयुष्मान, मैंने चैट ऑफ करके रखा हुआ है. बेटा फिर हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे आयुष्मान? मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? सो a इज इक्वल्स टू 9 बाय 2. ओके, सो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18. देखिए क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो यही a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9. अब देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहीं पे फिनिश कर सकते हैं कि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन सम 9 है. बट अगर हम पूरा करना चाहते हैं, नाउ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए एच एंड एच इज 4 एंड ए हमने निकाला है बच्चों 9 बाय 2 इंटू 4. जी स्क्वायर क्या हो गया? ए बी. सो ए बी इज 18. ए प्लस बी इज 9, ए बी इज 18. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक. आप b की वैल्यू लिख सकते हैं यहां पे 18 बाय a हियर. तो आप लिखेंगे तो a प्लस 18 बाई a इज इक्वल्स टू 9. सो यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. सो a वी कैन गेट एज 3 और 6. सो a 3 होगा तो b 6 हो जाएगा और a 6 होगा तो b 3 हो जाएगा. तो बेसिकली वी हैव गॉट टू नंबर्स 3 एंड 6. आई होप दैट इज क्लियर. सिंपल रूल, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच. जब भी दो नंबर्स दिए हैं तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच, याद रखिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को यूज करते हुए आपको करना है और सही करना है. इफ सम ऑफ ए एम एंड एच एम बिटवीन टू नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इज 25 एंड देयर जी एम इज 12, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स. नंबर्स नहीं निकालने हैं, सम ऑफ द नंबर्स निकालना है, ध्यान रखना. Sum of AM and HM between two positive numbers is 25 and their GM is 12. Then find the sum of the numbers. जल्दी कीजिए.
Palash, what about your answer? ओके ट्राई करो. वेरी नाइस. आंसर इज 9. आयुष्मान, नो बेटा. आंसर इज डी. वेरी गुड. किस किस का डी आ रहा है जल्दी बताइए. आंसर इज बी. देखिए भाई, जिस जिसका डी आ रहा है एक बार अपने आंसर को दोबारा चेक कीजिए. एक छोटी सी गलती कर रहे हैं आप. ठीक है पलाश, ऑल दो मैंने वेरी गुड इसलिए बोला कि आप 18 और 32 यहां तक पहुंचे, बट ऑल दो योर आंसर इज रॉन्ग, सो प्लीज रीचेक इट. पीडी आपने लिखा था, सॉरी पलाश नहीं, पीडी आपने लिखा था ऑप्शन डी. बेटा एक बार रीचेक करो. दो बच्चों ने लिखा है सी. ओके, ये नहीं हो रहा. अरे वाह, अरे ऐसे कैसे हार मान रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. दीपांशु, देखो भाई, सम ऑफ ए एम एंड एच एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स यानी ए प्लस एच दिया हुआ है बच्चों 25. जी इज 12. So G square is AH and AH is given as 144. Okay. So हम क्या करते हैं, यहां से H की वैल्यू यहां रख देते हैं. तो A plus 144 by A is equals to 25. So we have got square minus 25A plus 144 is equals to 0. So A is equals to, we are getting 9 or 16. Am I right? A 9 और 16 आया तो सम ऑफ द नंबर्स क्या आ गया बच्चों, 18 एंड 32. ओके, सो आप में से कुछ बच्चों ने इसीलिए आंसर किया 18 और 32. तो अब देखिए आप, लेकिन हमें पता है एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है और जीएम एचएम से बड़ा होता है. तो जो भी ए आ रहा है वो 32 से बड़ा होना चाहिए. 12 से, सॉरी, जीएम 12 है तो 12 से बड़ा होना चाहिए. सो 9 इज नॉट पॉसिबल. 9 इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो आवर आंसर विल बी 16. A is 16, so answer will be A plus B is equals to 32. So answer is 32. Option C. ये GK and दीपांशु दो लोगों ने किया है आंसर. वेरी नाइस. किरण आपने लिखा है सर इज इट सी. यस बेटा, इट इज सी. किसी को नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो आप. और देखो, मैं तो इसको ऐसे करता, दो नंबर्स का सम 25 है, प्रोडक्ट 144 है, तो इसको क्वाड्रेटिक बना के क्यों सॉल्व करें, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना भैया नंबर होंगे 9 एंड 16. और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं 9 एंड 16. क्लियर. सो अब 9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 12 से बड़ा नहीं होता. सो आंसर इज 16. ए एम इज 16, देन सम ऑफ द नंबर्स विल बी 32. क्लियर. गुड. चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से कीजिएगा, फिर हमें इनइक्वलिटी पढ़नी है. सो जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं. द एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड्स द जीएम बाय 5 एंड जीएम एक्सीड्स द एचएम बाय 4, देन फाइंड द नंबर्स. यानी एम इज G plus 5 and GM is H plus 4. Yes beta, AK, we are trying to resolve it. Our technical team is doing that, so please focus on the class. लास्ट में डी ऑप्शन में कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ए एम लिखा है तो ए एम हमेशा जीएम से बड़ा ही होगा. सो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आपका वो आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर सी आना चाहिए. ओके. So A is equals to G plus 5 and G is equals to H plus 4. जल्दी से कीजिए. Then the numbers are.
याद रखना ये रिलेशन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच. ओके, जेडी पलाश आपने आंसर किया है, सी एस एम आपने आंसर किया है, ए लेट्स चेक आंसर क्या आता है, बी. अरे वाह, 3 ऑप्शंस आ गए हैं, ए बी सी. दीपांशु ने आंसर किया है बी. एस एम, व्हाट्स योर गुड नेम? देखिए आप क्या कीजिए, पूरी इक्वेशन को जी में कन्वर्ट कीजिए. तो जी को हम ए को लिख सकते हैं g+5 एंड एच को क्या लिख सकते हैं, g-4. सो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी आर गेटिंग जी स्क्वायर प्लस 5g-4g-20. सो वी आर गेटिंग g एज 20. यानी ज्योमेट्रिक मीन हमें पता चल गया 20 है. तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया बच्चों, 25, और हार्मोनिक मीन हो गया 16. इतना समझ में आया? ओके सात्विक, वेरी गुड. तो G20 है, सम 25 है, यानी हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल्स टू 400 एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 50. Now you can solve by making quadratic or you can see a plus b is equals to 50. ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए. तो you can directly say answer is option A. नो बच्चों, किरण, आर ए नहीं, रवि, आंसर बी नहीं होगा बेटा, ए होगा. इज इट क्लियर टू यू ऑल? जस्ट राइट डाउन यस सर, इफ नॉट देन आई एक्सप्लेन अगेन. वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए था. जल्दी से देखिए एंड आस्क मी. ओके वेरी गुड. चलिए देखिए, अब हम आते हैं लास्ट. कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप अगेन? यस श्योर, व्हाई नॉट. देखिए जी यहां से 20 आ गया, ए 25, एच 16. यहां तक क्लियर है? ओके बेटा. सिली मिस्टेक, भाई ये बीमारी कब दूर करेंगे आप लोग? सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब देखिए G20 है, मीन्स रूट ए बी इज 20. Once again in English, okay. See, arithmetic mean is 5 times 5 plus g. So a is equal to g plus 5 and g is equal to h plus 4. And we know that g square is equals to ah. So g square is equals to, we'll replace the value of a from here g plus 5 and we'll also replace the value of h from here g minus 4. So we have got g as 20 and a as 25. Now, a means a plus b by 2. So, a plus b is 50 and root ab is 20. So, ab is 400. Then either you can solve by making quadratic and you can also check with the options. So, options are 10 and 40 because sum is 50 and product is 400. I think JD and KV, that is clear to you? Okay, चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे inequality based. Okay? X plus 1 by x is greater than equals to 2. Okay. AM, x plus 1 upon x upon 2 is greater than equals to their GM. GM क्या होगा? x into 1 by x whole power half. So x plus 1 by x is greater than equals to 2. Very easy. Okay. But ये आप याद रखिएगा, this is very important result. That something positive plus its reciprocal, something positive plus its reciprocal is always greater than equals to 2. Very important result. इस रिजल्ट को यूज करते हुए अभी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे. ओके चलिए लिखिए. A, B, C, D are positive real numbers, then prove that a square plus 1 into b square plus 1 into c square plus 1 into d square plus 1 upon a, b, c, d is greater than equals to 16. You have to use the last result. X plus 1 by x is greater than equals to 2. Okay, do it fast. ए प्लस 1 बाई ए बच्चों किससे बड़ा होगा? 2. ओके रवि, वेरी नाइस. सो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2.
Similarly, b square plus 1 by b is also greater than equals to 2. C square plus 1 by c is also greater than equals to 2, and d square plus 1 by d is also greater than equals to 2. If we multiply these all, we'll get a square plus 1, b square plus 1, c square plus 1 into d square plus 1 upon abcd is greater than equals to 16. Is that okay? So this is the simple application of something positive plus 1 upon positive is greater than equals to 2 using am greater than equals to gm. Okay, chaliye next question. Again, x to the power n y to the power m upon 1 plus x to the power 2n into 1 plus y to the power 2m less than equals to 1 by 4. Solve it and prove it. This is again based on that inequality. X plus 1 by x is greater than equals to 2. AK, आयुष्मान, दीपांशु, जल्दी से करिए. पिछले वाला अगेन प्लीज. दीपांशु, देखिए बेटा, ये याद रखो तुम तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. a plus 1 by a is greater than equals to 2. Something positive plus its reciprocal is always greater than equals to 2. So यहाँ से a square plus 1 by a is greater than equals to 2. Similarly, b square plus 1 by b is greater than equals to 2. Similarly, c square plus 1 by c is greater than equals to 2. And d square plus 1 by d is greater than equals to 2. आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा. ओके, डी के समझ में आ गया. अब इसी को देखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे. एस एम सात्विक, आपने लिखा है डन. डन फॉर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 12 और 13. विच क्वेश्चन? अरे वाह, ये तो बहुत सारे बच्चों ने डन लिख दिया है. वेरी गुड. देखिए, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2. So x to the power 2n plus 1 upon x to the power n is greater than equals to 2. So we can say x to the power n upon x to the power 2n plus 1 is less than equals to half. Similarly बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखो. y raised to power m upon 1 plus y raised to power 2m is less than equal to half. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, you will get less than equals to 1 by 4. वेरी गुड. देखिए, अभी तो मैं आपको प्रूफ दैट करा रहा हूं, फिर हम देखेंगे इससे जेई मेन में क्या पूछते हैं वो लोग. जेई मेन एंड जेई एडवांस. ओके, चलिए नेक्स्ट. वन मोर क्वेश्चन. बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन 8 ABC. देखिए यहां ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है. डिस्टिंक्ट लिखा है तो यहां इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल कब होते हैं? व्हेन नंबर्स कैन बी सेम. So distinct positive real numbers. So b plus c into c plus a into a plus b is greater than 8 ABC. जल्दी से करिए. Question number 14. Faster. अरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो बच्चों, b plus c by 2 can I say is greater than root BC? So b plus c is greater than 2 root BC. Similarly, c plus a is greater than 2 root CA. And a plus b is greater than 2 root AB. Multiply all, we'll get the answer just in one line. b plus c plus a plus b is greater than 8 ABC. Okay? So b plus c plus a plus b is greater than 8 ABC. Very good, Satvik.
Yes, I am also facing the same issue, Twitch. So we are trying to rectify this. Don't worry. वैसे भी बच्चों वो 5 सेकंड के लिए हो रहा है तो हटा दो, उसे इग्नोर करो, कोई बात नहीं. बाकी आप तो क्लास पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. b plus c plus a plus b greater than 8 abc. So b plus c by 2 is greater than root bc. c plus a by 2 is greater than root ca. So हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो हमें एक रिलेशन मिला b plus c greater than 2 root bc. Similarly यू गॉट डिसकनेक्टेड. ओके बेटा कोई बात नहीं, चलो आप आराम से देख लो, नहीं तो आप इसको पास लाइव सेशन में जाके ये वाला टाइम आप एक बार पास लाइव सेशन में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा. ओके चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं. देखिए एक टिप दे रहा हूं आपको छोटी सी. देखिए ये टिप आपको कहीं मिलेगी नहीं. वाई? बिकॉज ऐसी बातें कोई लिखता नहीं है. देखिए जब भी कहीं परफेक्ट स्क्वायर आए जैसे 9, 16, 25, तो आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू एच एम. यहां मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं बिकॉज नंबर्स आर गिवन डिस्टिंक्ट. ओके तो ध्यान दीजिएगा. यस आई नो दैट ट्विच एरर इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. ओके कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, फोकस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 9, 16, 4 कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ दिखेगा, यूज ए एम ग्रेटर दैन एच एम. ओके सो कैसे भाई? देखो a प्लस बी प्लस सी बाय 3, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज ग्रेटर दैन 3 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी. यानी हमने क्या किया, ए एम एच एम लगाया और एक लाइन में आंसर आया a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी ग्रेटर दैन 9. हैंस प्रूव्ड. सो ध्यान रखना जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ट्राई टू यूज ए एम ग्रेटर दैन एच एम. ओके यस सर बोलिए, समझ में आया या नहीं? और मैं अभी चेक करूंगा आपको समझ में आया या नहीं. ओके ओके गुड गुड. पलाश, किरण, वेरी गुड. चलिए एक क्वेश्चन और है. b प्लस सी बाय ए प्लस सी प्लस ए बाय बी प्लस ए प्लस बी बाय सी इज ग्रेटर दैन 6. ओके प्रूफ कीजिए. वेरी गुड दीपांशु, एस जी. नाउ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स दैन प्रूव दिस. मैं अभी चेक करूंगा वो बात, ध्यान रखना. ए एम ग्रेटर देन एच एम इस क्वेश्चन में नहीं लग रही है. क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि यहां 6 है. 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके जल्दी से सॉल्व कीजिए. यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस. चलिए अरे वाह, डन, वेरी गुड. रवि आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है. अरे वाह आयुष्मान, डन डन. देखो टीचर को अच्छा लगता है जब बच्चे लिखते हैं ना डन हो गया, टीचर का पढ़ाना सफल हो जाता है. वेरी गुड. एल एच एस अगर हम देखें तो लिखा है बी बाय ए प्लस सी बाय ए. अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ झूठ लिख देना मुझे खुश करने के लिए. आपसे जब हो तभी लिखना है. प्लस बी बाय सी. तो देखिए मैंने क्या किया, बी बाय ए प्लस ए बाय बी एक साथ लिखा, प्लस सी बाय ए प्लस ए बाय सी एक साथ लिखा, प्लस सी बाय बी. एच एम फॉर्मूला बेटा इस क्वेश्चन में एच एम नहीं लगेगा, फिर भी एच एम इज नंबर ऑफ द नंबर्स एन अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. यानी ए बी सी 3 नंबर्स है तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी. ओके अरे वाह ऐसे ही किया था. वेरी गुड. सी बाय ए प्लस ए बाय सॉरी जस्ट वेट सी बाय बी प्लस बी बाय सी. अब देखिए क्या बन गया, समथिंग प्लस इट्स रेसिप्रोकल. ये किससे बड़ा होता है? 2 से.
ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर दैन 6. जस्ट रिमेंबर समथिंग पॉजिटिव प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 2. ओके, मूविंग ऑन. Next question, 2 by b plus c plus 2 by c plus a plus 2 by a plus b is greater than 9 upon a plus b plus c. जल्दी से कीजिए. 2 by b plus c plus 2 by c plus a plus 2 by a plus b is greater than 9 upon a plus b plus c. One minute, last 1 minute for this question. ये ए आयुष्मान बताना नहीं था, अब आपने बता दिया है. खुद ट्राई करो. देखो 9 पे फोकस करो. 9 इज परफेक्ट स्क्वायर. और अभी मैंने आपको टिप दी थी, किसी क्वेश्चन में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखता है तो यूज AMHM. वेरी गुड आयुष्मान, आपने पकड़ लिया. अब AMHM निकालिए. सो क्या करेंगे हम? इन्हीं का ले लेते हैं. 2 अपॉन बी प्लस सी प्लस 2 अपॉन सी प्लस ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी अपॉन 3 इज ग्रेटर दैन 3 अपॉन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. अरे वाह, वेरी गुड, डन. मजा आ गया भाई. b plus c by 2 plus c plus a by 2. So we have got 2 by b plus c plus 2 upon c plus a plus 2 upon a plus b is greater than 9 upon a plus b plus c. देखिए एक लाइन में क्वेश्चन होगा, एक लाइन में. अगर आपने ये ध्यान रख लिया कि 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो सर ने सिखाया था AM ग्रेटर दैन HM. ओके, चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है. ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है इसमें. इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट tan A plus tan B plus tan C is equals to 3 root 3 if and only if triangle is equilateral. ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है. पहले कभी जब IIT हुआ करता था एडवांस में, जब हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते थे, तो दिस क्वेश्चन हैज कम इन IIT. बेटा किस टाइप के आएंगे ये बस आने वाले हैं अभी आपको. तब क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछी जाएंगी. बिल्कुल लॉजिक यही होगा. अभी हमने एक बेस तैयार किया है, अब हम जैसे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे. डोंट वरी. tan A plus tan B plus tan C is equals to 3 root 3 if and only if triangle is equilateral. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसका मतलब किस किस को पता है. if and only if. ओके, मैथमेटिकली कोई भी मुझे लिटरल मीनिंग ना बताए कि लिटरल मीनिंग ये होता है. सर इंग्लिश नहीं पूछ रहा हूं मैं. इफ एंड ओनली इफ का मैथमेटिकली मीनिंग क्या होगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि जब भी किसी सेंटेंस में लिखा है इफ एंड ओनली इफ. अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं IFF. ओके, बच्चे क्या समझते हैं इफ की स्पेलिंग गलत है. नहीं भाई, ये IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ. अब मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है? कौन मुझे बताएगा? शाबाश, जल्दी से बताइए. मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? ओनली इफ एंगल्स ABC आर इक्वल. नहीं बेटा, नेसेसरी कंडीशन. डोंट नो. नहीं 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 नहीं, मैं आपसे RA रवि इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं. मैं इन जनरल पूछ रहा हूं. मैथ्स में कहीं लिखा है इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल. ओके, देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है इट इज ट्रू फ्रॉम बोथ साइड्स. यानी आपको दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखाना है. यानी इट इज ट्रू एंड इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. ओके, यानी
अब हमने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, पहले हमने किया लेट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ध्यान से समझना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे हम, जेई मेन में आया हुआ है अभी। लेट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू tan a इज इक्वल्स टू tan b इज इक्वल्स टू, तो हम tan a इज इक्वल्स टू tan b इज इक्वल्स टू tan c क्या हो जाएगा बच्चों? tan 60, एंड tan 60 कितना होता है? √3। तो अब आपसे पूछ रहे हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c, दैट इज 3√3, हैंस प्रूव्ड। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं था भाई, ये तो आसान पार्ट है। अब हमें वाई से वर्सा प्रूव करना है, वाई से वर्सा, यानी हमें दिया हुआ है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू 3√3। ध्यान से सीखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए एम निकालते हैं, ए एम कितना आएगा इसका? tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 3, सो 3√3 बाय 3 कितना आया? √3। ओके, नाउ जीएम। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी आप सबको पता होना चाहिए tan a प्लस tan b प्लस tan c एक आइडेंटिटी है, आई होप सबको पता है। क्या होता है बच्चों? tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू tan a tan b tan c। तो gm निकालें, तो gm क्या होगा? tan a इंटू tan b इंटू tan c पावर 1/3, so that is 3√3 power 1/3, so √3, so we can see that am is equals to gm। अब देखो am gm इक्वल कब होते हैं? जब नंबर सेम हो, यानी tan a must equals to tan b must equals to tan c, so we can say a is equals to b is equal to c, hence we have proved that triangle is equilateral। तो पहले हमने क्या किया? माना ट्रायंगल इक्विलेटरल है, फिर प्रूफ किया tan a प्लस tan b प्लस tan c 3√3 है। अब हमने माना tan a प्लस tan b प्लस tan c 3√3 है, तो हमने am gm यूज करके प्रूफ किया कि यस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी कोई पूछ रहा था कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इफ x ग्रेटर देन 0 यानी नंबर्स पॉजिटिव हैं, देन दिस इज लेस देन और इक्वल टू, जल्दी से बताइए। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, यहां पे x टू द पावर 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 1/x टू द पावर 100 प्लस 1/x टू द पावर 99 एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर 100। दिस वाज अ हिंट फॉर यू। ओके, जल्दी से खींचिए। ये क्या आ रहा है? सम है, आंसर बी। अरे वाह, वेरी गुड पलाश, वेरी गुड रवि, वेरी गुड दीपांशु। ओके सिद्धि, ओके सिद्धि, वेरी गुड सिद्धि। देर इज वन मोर पीडी, उनका नाम भी पलाश है, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज। सिद्धि, वेरी गुड। सो देखो, अगर हम यहां पे HM GM ग्रेटर देन HM लगाते हैं, अरे वाह, सबने कर ही लिया है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब। तो GM इज ग्रेटर देन HM, तो GM देखिए, मुझे कैसे पता चला GM लगाना है? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 1 आ रहा है, इज ग्रेटर देन कितने नंबर्स हैं अभी? ये 100 माइनस 100 से लेके 100 तक, so 201 upon their sum। So we can say that that is less than 1/201, so option is B is correct। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1, जल्दी से बताना, 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए।
अगर आज की क्लास में समझ में आया है, यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स टू गिव मी दिस आंसर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी. अरे वाह, सी जल्दी में गलत काउंटिंग कर ली है दीपांशु, एक बार दोबारा चेक करो. स्पीड बढ़ानी है बट बेटा एक्यूरेसी नहीं खोनी है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. ध्यान दो, दुर्घटना से देर भली. वेरी गुड सी एच, आंसर इज बी. के ई, आंसर इज बी. वेरी नाइस. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर. ओके बेटा, हमने क्या किया जल्दी से देखना. एस यू जस्ट वेट. ओके बेटा, जल्दी से. मैंने पहले x टू द पावर 100 से डिवाइड कर दिया. उससे मुझे क्या फायदा हुआ, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है. जीएम में क्या आता है, प्रोडक्ट, तो 1 लिखा. अब ये एचएम ले लिया तो जीएम ग्रेटर दैन एचएम. 201 यहां आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/201. तो इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/201. एस यू, आई थिंक दैट इज क्लियर. चलिए, अब सारे बच्चों ने आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का कर दिया एंड आई एम हैप्पी. देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी. देखिए, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और आप 30 सेकंड में कर पा रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. प्लस सी डी, टोटल नंबर्स कितने हैं ये, 10. तो अपॉन 10, दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट करोगे तो जो भी आ रहा है ये ए बी सी डी. ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो पावर 5 होल पावर 1/10. ए बी सी डी की वैल्यू 1 दी हुई है, तो वी कैन से दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस सी डी. ओके, वेरी गुड. आंसर 10. चलिए नेक्स्ट. देखिए, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है. A1, A2, A3, AN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स नंबर C. यानी हमें A1, A2, A3, AN का प्रोडक्ट दिया हुआ है. A1 into A2 into A3 into AN is C. Now we have to find the minimum value of this. Okay, try it. जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सिर्फ इसीलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अदरवाइज ये 40 सेकंड में हो सकता है. 1 मिनट, क्योंकि मैंने बता दिया ये जेई एडवांस का है. नहीं बताता तो मैं शायद आपको 30 सेकंड देता. तो जल्दी से 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको. जस्ट 1 मिनट. बी. ओके, नो. के अगेन रीचेक योर आंसर. क्योंकि अगर बेटा आप an+1 ले लेते हैं. बी आयुष्मान, नो बेटा. डी के दीपांशु, ओके. Sir, please say the question as not clear screen. Okay. If A1, A2, A3 dot AN are positive real numbers whose product is a fixed number C, then the minimum value of A1 plus A2 plus A3 plus AN minus 1 plus 2AN. देखिए, A1 plus A2 AN minus 1 plus 2AN. मैंने इसे एक नंबर ही मान लिया 2AN. तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, N. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने N+1 लिया वो गलती कर रहा है. N is greater than equals to A1, A2, A3, AN into 2 whole power 1/n. So answer is simple. A1 plus A2 plus A3 plus 2AN is greater than equals to N into 2C whole power 1/n. So answer is A. दीपांशु, आपने ये आंसर किया था. दैट इज गुड. ओके, सो ध्यान रखिएगा, AM greater than equals to GM. Fine. Okay, moving on. Next, the minimum value of the quantity
ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 1 अपॉन ए बी सी। ओके, ये भी जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं चाहूंगा आप इसको बिना पेन चलाए करें एक बार। इसमें वो इनइक्वलिटी यूज होगी जो अभी मैंने आपको याद कराई थी। x प्लस 1/x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। यूज दैट and do it orally and try to solve it orally. देखो भाई यहां ध्यान दो। आप तो अरे वाह, एस जी आपने लिखा है 25। लेट्स सी, ये आया +1। सो कैन आई से इट इज a प्लस 1/a प्लस 3। अब a प्लस 1/a बच्चों किससे बड़ा होता है? a प्लस 1/a किससे बड़ा होता है? 2 से। तो 2 प्लस 3 यानी ये किससे बड़ा हो जाएगा? 5 से। ऐसी आपने पूछा प्रीवियस में क्या कंसेप्ट बेटा? प्रीवियस में am ग्रेटर देन gm लगाया है हमने। सो a प्लस 1/a प्लस 3 किससे बड़ा हो गया? 5 से। सिमिलरली b प्लस 1/b प्लस 3 किससे बड़ा हो जाएगा? 5 से। सिमिलरली c प्लस 1/c प्लस 3 ये भी किससे बड़ा हो जाएगा? 5 से। ओके, जस्ट वेट। c plus 1/c plus 3 that is also greater than equals to 5। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125, ऑप्शन बी। देखिए जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है सिंपली यूजिंग दिस, जिस पे आज हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12। सम दिया हुआ है 12 और प्रोडक्ट किसका दिया है? देखिए ध्यान से सीखे, एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 5। देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। एक्स क्यूब है यानी यहां एक्स कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। तो मैंने उसको लिखा बच्चों 3 टाइम्स एक्स बाय 3। वाई की पावर 4 चाहिए तो प्लस 4 टाइम्स वाई बाय 4 प्लस 5 टाइम्स जेड बाय 5। ओके, क्लियर? ओके, अब मैंने निकाला इनका am, तो ये कितने नंबर से बच्चों? 12। तो अपॉन ये 12 अपॉन 12 कितना आ गया? 1। सिमिलरली वी विल फाइंड gm। ध्यान से सीखना बच्चों, x बाय 3 होल क्यूब, y बाय 4 होल पावर 4, z बाय 5 होल पावर 5, z बाय 5 होल पावर 5। होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/12। ओके, so we have got x cube y raised to power 4 z raised to power 5 upon 3 cube y 4 raised to power 4 and 5 raised to power 5 होल पावर 1/12। इसकी वैल्यू रख दीजिए यहां पर। क्या है हमारे पास? 0.1 इंटू 600 होल क्यूब अपॉन 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। इफ यू सी 5 raised to power 5, 4 raised to power 4 into 5 raised to power 5 whole power 1/12। If you simplify this, you will also get 1. So you can see that ये इतना beautiful question है कि यहाँ पे am is equal to क्या आ गया? gm. So we can say the numbers are same. So x by 3 is equals to y by 4 is equals to z by 5। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 के। तो x3 y4 z5। अब आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यू कैन फाइंड इट। तो 27 प्लस 64 प्लस 5 क्यूब इज 125। सम अप कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 189 प्लस 27। सो आंसर शुड बी 216। आंसर डी। दीपांशु आपने आंसर किया था 342। नहीं बेटा, ध्यान से समझना है, ऐसे होगा। आंसर इज 216। क्लियर? द कंसेप्ट इज am इज इक्वल्स टू gm। हमें कैसे पता चला am लगाना है? बेटा सम दिया हुआ है। कैसे पता चला gm लगाना है? प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट किसका है? x क्यूब है, y की पावर 4 है,
तो हमने x by 3 कर दिया, y by 4 कर दिया, z by 5 कर दिया. Am I clear? Write down yes sir if I am clear. जल्दी से लिखिए. Okay. चलिए, very good. Yes, SR, very nice. Last question for you. If 3 positive, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जे मेन में आया था अभी. If ABC are in AP such that ABC is equals to 8, then find the minimum possible value of B. Very good, Kiran. चलिए जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए. If ABC is 8 and ABC are in AP, then find the minimum possible value of B. Faster. ABC are in AP. याद रखना 2B is equals to A plus C. जल्दी से कीजिए. और ये क्या दिया है? This is product. You have just 60 seconds, 1 minute to solve this question. अरे वाह, 2. SU, सूरज, आपने आंसर किया है 2. Let's check. Let's wait for others' answers. 4. Okay. B. Okay, दीपांशु, देखिए A plus B plus C by 3 is greater than ABC power 1 by 3. अब A plus B plus C, A plus C को हम 2B लिख सकते हैं, तो यह 3B by 3 is greater than 8 raised to power 1 by 3. So B must be greater than equals to 2. So minimum value will be option B. आयुष्मान, आपने किया है 4. नहीं बच्चा, एक बार कैलकुलेशन देखो, हो सकता है कहीं गलती की हो आपने. So answer should be 2. Okay. सिद्धि, किरण ने भी 4 आंसर किया है. एक बार रीचेक कीजिए अपने आंसर को. श्याम 2. वेरी गुड बेटा श्याम. तो आई होप आज की क्लास में हमने जो सीखा, AM ग्रेटर दैन GM, बेसिकली AM GM HM की इनइक्वलिटी पे फोकस कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड AM GM एंड HM. फिर भी कोई दिक्कत होती है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. यू कैन गिव फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. हाउ टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एन अपकमिंग लाइव क्लासेस? बेटा आप अमेजॉन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और यू कैन गो इनटू लाइव सेशंस एंड यू कैन सी द अपकमिंग सेशंस एंड यू कैन आल्सो सी द पास्ट लाइव सेशंस. रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप एंड यू कैन सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओके, चलिए. So keep attending my classes. Next class will be tomorrow. Tomorrow will be starting straight line 1. Straight line को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कल हम straight line फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. Tomorrow at 3 PM. Thank you. DK DPP 6 क्वेश्चन, बेटा अब आप एक बार उसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा. फिर भी नहीं होता है तो we'll discuss it next time. SR straight line is my favorite. Okay, so कल से हम coordinate geometry स्टार्ट करेंगे. So tomorrow we'll be discussing straight line. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you. सीक्वेंस एंड सीरीज तो बेटा फिनिश हो गया है. सीक्वेंस सीरीज में इतना ही था. AK. Okay, thank you.